Yes, ma'am. Can you hear me? मैम मेरा एक क्वेश्चन था। Nandita, Shruti, Rinal, Dheer, Shivam, Ramnik, Achal, Nikita, Ayush. Am I audible to everybody? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. मैम आई हैव एन क्वेश्चन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सब ऑडियो म्यूट कर दीजिए प्लीज, और मैं जो नोट्स बनवा रही हूँ वो लिख लो प्लीज। Yes. Shall we start? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, your voice is breaking. मैम आवाज नहीं आ रहा आपका। मेरा आवाज नहीं आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है? अंकित के पास में Mute your. अब आ रहे हैं। Now am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग एंड यू हैव टू मेक द नोट्स जैसे आप कॉलेज में बनाते हो वैसा वाला। ये आपके लिए बेनिफिशियल इसलिए रहेगा क्योंकि जब आपके एग्जाम्स होंगे तो आपको शायद थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। थोड़ा रफ बना लो, एक पॉइंटर, वन पॉइंटर वाला जो होता है, ताकि आपको थोड़ा सा भी जब आप पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री क्या थी। ठीक है, शैल आई स्टार्ट? Yes, ma'am. सो मच नॉइज इज कमिंग, प्लीज यार ये Audio. Ankit आप प्लीज Kumar. अपना ऑडियो जो है म्यूट कर दो, मुझे आवाज बहुत ज्यादा नॉइस आ रहा है। Shall I start? Raise your hand. Shall I start? Okay. Note down. Cinema is one of the most popular media of communication. Cinema is one of the most popular media of communication. Through cinema, film directors communicates with the audience. Through cinema, film directors communicates with the audience. Cinema is an audio-visual medium. Cinema is an audio-visual medium and uses images, sound, and editing to communicate. I'm repeating once again. Cinema is an audio-visual medium and uses images, sound, and editing to communicate. Cinema is also a medium of non-verbal communication. Cinema is also a medium of non-verbal communication. Cinema speaks through silence. Cinema speaks through silence, facial expressions, body language, etc. Am I clear till this point? Raise your hand. Okay. And last line फिर से repeat. Cinema speaks through silence, facial expressions, body language, etc. Cinema is very powerful medium of mass communication. Cinema is a very powerful medium of mass communication. Through this medium, different people like producers, directors, storyteller, story writer, songwriter, want to communicate with the masses. I'm repeating once again, cinema is a very powerful medium of mass communication. Through this medium, different people like producer, director,
storyteller, story writer, songwriter want to communicate with the masses. Language is not a barrier. Am I audible? Hello? Am I audible to everybody? Yes, ma'am. Last line फिर से please. Okay. Last line is, through this medium, different people like producer, director, storyteller, script writer, songwriters, etc. want to communicate with the masses. बेसिकली जब आपके फिल्म डायरेक्टर्स होते हैं वो इसी तरह से आपसे कम्युनिकेट करते हैं ना, जो भी वो मैसेज पास ऑन करना चाहते हैं वो क्या करते हैं, फिल्म के थ्रू आपको बताते हैं कोई भी मैसेज, चाहे वो स्टोरी से रिलेटेड हो या फिर कोई सोशल मैसेज देना चाहते हो, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। अब ये जो सब्जेक्ट है बेसिकली बहुत डेप्थ में है, इसका जितना भी बेसिकली अगर इन डेप्थ जो नोट्स होंगे वो मैं आपको मेल करवा दूंगी, तो आप उसको मेल्स के थ्रू पढ़ लेना। ये मैं सिर्फ इतना वन पॉइंटर इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि आपको खुद याद रहे कि आपने क्या पढ़ाई की है आज के सब्जेक्ट में, आज की जो ये क्लास था उसमें, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेना। हाँ बोलो, कौन बोलना चाह रहा है? आयुष। हाँ आयुष बोलो। मैम आयुष बोलो। चाहता हूँ जी मैम, जैसे मैम सिलेबस तो है मैम, लेंदी सिलेबस है ये, इसे हम ऐसे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, पर हम चाहते हैं कि हर पॉइंट को आप टच करें मैम, मतलब नॉट इन डेप्थ पर हर एक हाँ पॉइंट मैं वही करवा रही हूँ। हाँ 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 ठीक है, मैं नोट्स हम पढ़ वही सकते वन हैं मैम लाइनर तो। के हिसाब से आपको, हाँ वो आप इन डेप्थ में मैं मेल आपको करवा दूंगी, लेकिन मैं आपको वन पॉइंटर या लाइक छोटा सा पैराग्राफ के थ्रू आपको सिर्फ छोटी छोटी चीज को समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है, क्योंकि डिजिटल में ये पॉसिबल नहीं है कि मैं लेंथ ही बता पाऊँ। जी मैम। अब हम आते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सिनेमा इन इंडिया। आप एक एक पॉइंटर आप लिख लो ताकि आपको याद रहे और कंफ्यूजन ना रहे। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सिनेमा इन इंडिया। करो स्टार्ट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so Raja Harishchandra was the first. Raja Harishchandra was the first silent Indian movie which was made in India. Dada Saheb Phalke, the father of Raja Harishchandra, was the first silent Indian film which was made in India. Dada Saheb Phalke, the father of Indian cinema, was the director of this movie. दादा साहब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही इस फिल्म हेलो हेलो Hello. हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। Yes, ma'am. अरे मैम का कुछ वो हो गया है, ग्लिच। यस यस मैम, आप स्टिल हो गई हैं। टेक्निकल इशू। आवाज नहीं आ रहा है। क्या समाचार है भाई? क्या पैसे नहीं लिए और उन्होंने कहा नोट फटे हुए हैं। आवाज नहीं आ रहा है मैम। नोट फटे हुए हैं। म्यूट कर ले आसिफ भाई। बॉक्सर रुक जाओ। बॉक्सर शांत। अरे आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम आ गया क्या यार? शिवम जा सो के उठाए क्या? मैम आपकी वॉइस म्यूट है। शिवम जा खैरिक। शिवम कैसा है? आपकी वॉइस म्यूट आयुष है। पूजा करके बैठा हुआ है यार। हाँ दो संस्कारी बनो, संस्कृति को फॉलो कम ऑन करो यार। everybody
एवरीबडी अब आ देयर रहे हैं वाज मैम। सम टेक्निकल Yes, ग्लिच, ma'am. बट Yeah. अभी हाँ, अभी ma'am. आप सब मेरी बात सुन रहे हैं, ऑडिबल हूँ मैं सबको? Yes, Yeah, ma'am. मैम Yeah. ma'am. अभी भी Yes, आपका ma'am. ठीक आवाज है, कट तो रहा है Yes, मैम। ma'am. यस मैम। आप प्लीज अपना ऑडियो म्यूट कर दीजिए, उसके आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, आप नोट्स बनाते रहिए जो भी मैं बनवा रही हूँ, ठीक है? और साथ साथ मैं समझाती रहूंगी जो भी इश्यूज मैं टच करूंगी, जो भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ। आपका वहां तक हो गया था? शैल आई स्टार्ट? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You can. Yes. आपका ऑडियो सबका म्यूट नहीं है, ठीक है? आलम आरा made in 1931 was the first talkie feature film in India. Alam Ara, made in 1931, was the first talkie feature film in India. इसका क्या मतलब हुआ? Is anybody can guess? कोई बता सकता है अभी? बोलने वाली एक पहले करके फिल्म थी। one by one, one by one, please. मैम पहली बोलने वाली फिल्म थी। बोलने वाली नहीं थी, पहले ही फिल्म थी जिसमें ऑडियो का इस्तेमाल हुआ था, ठीक है? वही मतलब वही। इसमें ऑडियो आलम आरा मैम 1931 में पहली फीचर्ड फिल्म, ऐसी चलिए। फीचर्ड फिल्म आई थी जिसमें मैम मैं ये ऑडियो पूछ रहा विजुअल था का कि ये जो इस्तेमाल किया राजा गया। हरिश्चंद्र थी ये कब आई थी फिल्म, मतलब इस सन क्या था? ये 1913 और पहले आई थी। 1913 में आई थी, अच्छा ठीक है? और ये जो आलम आरा है ये 1931 में आई थी। ठीक है। इसके बाद एक और मूवी आई थी क्या उसका नाम? Was the first talkie feature film in India, ठीक है? आयुष, यस मैम। ठीक है? जी मैम। Okay, जी it was the time when every year, मतलब कि 1931 से एक ऐसा इरा शुरू हुआ जब हर साल फिल्म इंडस्ट्री में 200 मूवी बनता था, ठीक है? तो it was the time when every year around 200 films, it was the time when every year around 200 films were made in India. ठीक है? रिपीट कर दो। Alam Ara, made in 1931, was the first talkie feature film in India. It was the time when every year around 200 films were made in India. यानी कि उस साल के बाद 1931 के बाद हर साल 200 फिल्म बनता था, जो कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक तरह से बहुत ही ड्रास्टिक चेंज था, बिकॉज बिफोर दैट देयर वर लाइक लेसर मूवीज और विदाउट ऑडियो मूवीज बनती थी, जिसमें ऑडियो नहीं होता, मतलब वीडियोस नहीं होता था, ऑडियो नहीं होता था। लेकिन बाद में एक कह सकते हो कि एक चेंज आया, टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ और उसके बाद आलम आरा के बाद फिल्में बननी शुरू हुई जिसमें ऑडियो एंड विजुअल्स दोनों होते थे। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, आप इसको पॉइंटर की तरह ही लिखना, 1 point, 2 point एंड नाउ द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज, बोलो। Yes, ma'am. अर्देसिर ईरानी, अर्देसिर की स्पेलिंग में बता रही हूँ, ARDESHIR। मैम मेरा एक सवाल था। हेलो हेलो टेक्निकल इशू गाइस। हेलो मेंटेन डिग्निटी। मैम हेलो। अरे वाल्मीकि टेक्निकल इशू ब्रो। डिस्कनेक्ट हो गई है मैम। यार वाल्मीकि आराम क्या से। सवाल है? वाल्मीकि ऐसे नहीं करते सवाल, तुम्हारे सवाल से मैम कनेक्टिविटी प्रॉब्लम मैम है। आया था क्या? सवाल सवाल पूछो यार। वाल्मीकि यार माफ कर यार, कितना सर्वर सवाल हेल्प हो पूछ रहा है। वाल्मीकि सवाल पूछ। सर्वर दे दे, सवाल सर्वर पूछ है। वाल्मीकि। किससे पूछे? वाल्मीकि मैं ऐसा ask the सवाल पूछता question। हूँ कि मेरे से पूछ मैम लेना। hear me? Can you hear अरे me? यार भाई तू जग गया। Yes, गुड yes. मॉर्निंग। आराम से मैम मैम can को you आवाज hear नहीं me? आ रही है। प्रज्ञा दो दिख रही है। इसको डांट इतना सकते हैं खतरनाक मैं। सवाल पूछता है कि मैम डिस्कनेक्ट हो गई। सवाल वाल्मीकि पूछ पूछो क्या करो यार। यार।
किसी को डांट पड़ रही है गाइस। सवाल पूछ। कुणाल ऐसे नहीं करते यार। आई हैव ए तुमने क्या किया? अभी हमने गेम रैक स्ट्रीम सर्वर लाइव चेक किया कर देंगे, क्या? समझा कि नहीं? सवाल पूछ और हिंदी में रैकर पूछ। रैक रैक नहीं हाँ। इंग्लिश में। अंकित अपने ईएनएस में अपलोड कर दे। अंकित अंकित आई ईएनएस हैव हाँ अ अपलोड कर भाई, दे। क्वेश्चन। अभी की आवाज आ रही क्या छोटू की? लाइव वॉइस उड़ा देंगे उसको। हाँ वाल्मीकि। ए तुम हेलो रुक जा, मैम, आप सुन पा रही हैं तुरंत मुझको? रुक जा, हेलो वाल्मीकि रुक जा। अबे मेरे मैम से पूछ। डिस्कनेक्ट हो गई मैम है नहीं है शायद। अभी। नहीं मैम कैन यू नहीं है हियर मी? नो वाल्मीकि। पर्सनल अच्छा नहीं है, कहाँ सर्वर गए? प्रॉब्लम। सब के सब अभी के अभी चुप हो जाओ 2 मिनट के वाल्मीकि लिए। यू कैन आस्क। ये कौन सुरभि बोला? मैम Who's आ रही है? are you मैम Surbi? ने Yes, I'm मैसेज किया here. नो पर्सनल डिस्कशन। How are you, Surbi? Just elaborate the I Indian am cinema. all good. मैम ने लिखा है, गीतिका मैम ने नो पर्सनल Ayush, your name डिस्कशन। is not Valmiki, okay? ओके मैम मैम। मेरा आपसे मेरा आपसे Can सवाल है you कि please जो maintain silence? तो ये कौन है? ये श्रुति थी। अरे श्रुति, तेरा आवाज टीचर की सब तरह यही क्यों लगती लगता है। है ये। मस्त बोली, है? एकदम करो अच्छी आवाज लगी। मैम की बे, चुप हो जाओ। अरे भाई लग ये जा। श्रुति बोली थी क्या? चुप हो आ गए जाओ। सब लोग लाइन पे? सबसे ज्यादा जी मैम। सीरियस है केवल आयुष पढ़ने के लिए। हो गया? पूरा टीका वीका लगा हो के गई आया सबकी है। आपस में अरे बातचीत? वाल्मीकि मैम आ गई, चुप हो जाओ। सॉरी। पर्सनल सबका डिस्कशन बातचीत हो बाद में गया? कर लेना, पढ़ लो, अभी टाइम पढ़ने का है। चलो। चला स्टार्ट हो गया? यस मैम, यस यू कैन। मैम। Yes, ma'am. अभी अपना ऑडियो प्लीज म्यूट कर यस दो मैम। सब लोग। चलो स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? द गोल्डन इरा ऑफ। सब स्टूडेंट्स प्लीज अपना ऑडियो म्यूट कर दो। मैं बोल रही हूँ और साथ साथ समझाती भी जा रही हूँ। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो लास्ट में आपसे सवाल ले लूंगी, ठीक है? द गोल्डन इरा ऑफ इंडियन सिनेमा, द गोल्डन इरा ऑफ इंडियन सिनेमा स्टार्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब जब देश आजाद हुआ उसके बाद। द गोल्डन इरा ऑफ इंडियन सिनेमा स्टार्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। सत्यजीत रॉय मेड पत्थर पंचाली in 1955. मैम आप तो कुछ और लिखवा रहे थे, अर्देशी रानी वाली लाइन। वो वाली बात हो गई थी कंप्लीट? कंप्लीट नहीं हुई थी? नो मैम। नो मैम, नो मैम। ये ऑडियो किसका आ रहा है? आयुष रस्तोगी। ढाले का आ रहा है। Okay. So Ardeshi Rirani made a color picture in 1937 with Kisan Kanhaiya, right? हो गया था यहाँ तक सब बच्चों का? यस पिक्चर मैम। इन उसके बाद मैम। Repeat. Ardeshir Irani made a color picture in 1937 with Kisan Kanhaiya. हो गया यहाँ पे। ये एक पहली मूवी थी जिसमें कलर का इस्तेमाल हुआ। पहले ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज होती थी, लेकिन ये इस मूवी थी जिसके बाद कलर इस्तेमाल होने लगा, यानी कि टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ एंड देन दे गाइस यूज्ड कलर्स इन द सिनेमा। नाउ आई एम कमिंग टू द इंडिपेंडेंस वाला पार्ट, जिसमें आपको बता रही हूँ कि इंडिपेंडेंस के बाद किस तरह के चेंजेस आए इन सिनेमा, ठीक है? शैल आई स्टार्ट? एवरीबॉडी इज लिसनिंग? मेरे को समझ, Yes, मैं ma'am. समझ मतलब आ रही हूँ, सबको समझ आ रही है मैं जो पढ़ा Yes, ma'am. रही हूँ? ठीक है, चलो। सो बेसिकली द गोल्डन इरा ऑफ इंडियन सिनेमा स्टार्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब देश आजाद हुआ उसके बाद सिनेमा जो है वो चेंज हुआ। चेंज किस तरह से हुआ अभी बताते हैं। सत्यजीत रॉय। मैम ये लिखना है क्या? हाँ लिख सकते हैं। हेलो सत्यजीत हेलो रॉय। हेलो यस यू कैन राइट, मैम यू कैन राइट। मैम 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 मैं सुनाई दे रहा हूँ। हेलो हेलो नाम बताओ, मैम, आयुष आयुष नाम बताओ। हाँ आयुष आयुष बोलो। आयुष मैम, हमें मैम ये बहुत हम्म। कम टाइम के लिए, मैम हम इसमें लिखने में टाइम वेस्ट करेंगे तो कभी कवर नहीं हो पाएगा। मैम आप हमसे समझा दीजिए, हमें नोट्स में तो ये मिल जाएगा मैम, कहीं जी भी। जी यस मैम। मैम समझाने में, ठीक है। लिखवाने में यस टाइम बहुत मैम, वेस्ट होगा मैम। आप हमको एक एक लिखवाने में पॉइंट टाइम करके मैम सब 40 समझा मिनट। दीजिए। मैम इसका 40 सब्सक्रिप्शन मिनट है हम टाइम लोग के बहुत पास। कम है मैम, 40 मिनट हमारा इसी में निकल जाएगा। हम लिखने में ठीक है ठीक है ठीक है। कवर नहीं हो पाएगा। आयुष मैं बोल रही हूँ, अब तुम सुन लो, ठीक है? सबका म्यूट है ऑडियो, ठीक है? तो बेसिकली जब गोल्डन इरा जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद आया, जब सत्यजीत रॉय ने एक पत्थर पंचाली फिल्म बनाई। किस तरह से चेंजेस आए इंडिपेंडेंस के बाद? ये कौन है? शुभम,
शुभम शुभम यस मैम। शुभम यस बी मैम। अटेंटिव। ओके, सो बेसिकली ma'am. आपने पुराने आई गॉट द आंसर। पुराने डायरेक्टर्स के नाम बताओ जो आपने सुने हो। सत्यजीत रॉय तो मैंने बता दिया, उसके बाद और किसी ने कोई पुराने डायरेक्टर्स का फेमस नाम कोई सुना है? बॉबी 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 रमेश सिप्पी। नहीं, फिल्म डायरेक्टर्स जिनके नाम आपको लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छी मूवीज बनाई। शंकर महादेवन नहीं होता। गुरुदत्त किसी ने सुना संजय है? लीला भंसाली। राज गुरुदत्त कपूर। गुरुदत्त का प्यासा और मैम कागज उन के फूल उनके किसने पिताजी देखे मैम, हैं? संजय दत्त के पिताजी, संजय दत्त के संजय दत्त के पिताजी। पिताजी। एक क्या मिनट, नाम है पहले उनका? तो सब अपना ऑडियो म्यूट कर दो। जब मैं सवाल पूछूं तब 1 बाय 1 आंसर करो, तभी समझ आएगा, ठीक है? यश चोपड़ा मैम, आंचल, यश चोपड़ा। आंचल, शुभम, योर ऑडियो इज नॉट म्यूट। यस मैम। आपका ऑडियो अभी भी। शुभम, गुरुदत्त का नाम सुना है? शुभम, मैम म्यूट यस करेंगे मैम। तो बोलेंगे शुभम, कैसे? am I audible to everybody? मैम आपकी साउंड रोबोटिक हो Yes, रही है ma'am. बीच बीच में। थी प्यास। मैम आपकी आवाज कुणाल, आप मुझे बताओ, गुरुदत्त की आपने नाम सुना है? गुरुदत्त फिल्म डायरेक्टर जो थे। नो मैम। कुणाल, आई एम टॉकिंग टू यू। नो, हेलो प्यासा मूवी भी नहीं देखी होगी इसका मतलब। मैम, मैं इंडियन मूवी नहीं प्रज्ञा, देखता। प्रज्ञा, यस साउथ इंडियन मूवीज देखते हैं मैम। यस मैम। नहीं, मैं हॉलीवुड देखता हूँ ज्यादा। ठीक है। प्रज्ञा, आपने मैम गुरुदत्त मेरा का एक नाम सवाल सुना है। है? नो मैम, मैंने नहीं प्रज्ञा, सुना। ठीक है। तो गुरुदत्त जो है बेसिकली आपने देखा नहीं है, लेकिन ठीक है, आप लोग प्लीज देखिएगा जरूर यूट्यूब पे। पहले तो अपना ऑडियो सब म्यूट कर दो प्लीज, मेरे को आवाज नहीं आ रही है किसी की भी। आशीष, हाँ, जब भी आपके पास वक्त हो ना तो प्लीज थोड़ा सा इंडियन सिनेमा के लिए पढ़ लेना, आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। गुरुदत्त जो है वेल नोन एक्टर थे, वेल नोन डायरेक्टर थे, बहुत ही बेहतरीन काम करते थे। पुरानी जितनी भी फिल्में हैं, प्यासा हो गया, कागज के फूल हो गया, कागज के फूल ये है। ऐसी मूवीज हैं जो कि हाँ, ये ऐसी मूवीज है जो कि उन्होंने डायरेक्ट भी की थी और जिसमें नेट उन्होंने से देख के एक्टिंग भी बोल की रहे हैं थी। मैम। मैम उनकी आपकी एक बहुत आवाज नहीं फेमस आ रही फिल्म है है। चौधरी का चांद। नेट से देख के बोल रहा है मैम। आपकी आवाज प्लीज अपना ऑडियो म्यूट कर दो, मुझे आवाज ही नहीं आ रही है। आप 1 बाय 1 बोलोगे तो मुझे समझ आएगा आप क्या बोल रहे हो। मैम मदर इंडिया, मदर इंडिया मैम। ये सारी जितनी भी पुरानी मूवीज थी, इसमें जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था वो बिल्कुल अलग था कंपैरेटिव टू अभी जो हो रही हैं उससे, ठीक है? मैम Am I audible to सवाल। everybody? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। क्योंकि जब भी मैम मेरा मैं एक कुछ पूछने लगती हूँ, किसी का ऑडियो इतनी तेज आ रहा है कि मुझे आवाज ही नहीं आ रही है किसी की। किसका सवाल है? मैम किसी से शुभम, अभी आवाज आई? शुभम समझ। शुभम कहाँ है शुभम? शुभम, शुभम को टेक्निकल इशू आ रहा है मैम। यस मैम। कौन सवाल भाग गए पूछ रहा हेलो। था अभी मुझसे? कोई भी नहीं हेलो। पूछा था मैम। आप मैम शुभम वाल्मीकि सवाल पूछ रहा है। यस चार्ज कर रहा है मैम, बाबा जबरदस्ती। टाइप कर रहा है मैम। हाँ शुभम बोलो। शुभम कहाँ हो? बोलो। शुभम मैम इधर ही है। वाले की बोल। मैम मेरा एक सवाल ये था कि ये जो फिल्में जो बनती है इनकी अर्निंग कैसे होती है? टिकट लोग क्या नाम है खरीदते हैं, तो इनको जो प्रोड्यूसर होते हैं वो उनकी फायदा उसको कैसे होता है, अर्निंग कैसे होती है इसकी? जो फिल्म प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको कैसे अर्निंग होती है? उनको फायदा कैसे होता है? आप लोगों के हाँ। थ्रू फायदा होता है। आप लोग वो जो उनको पैसा देते हो कैसे? प्रोड्यूसर्स को, आप लोग फिल्म देखने जाते हो, फिल्म की टिकट खरीदते हो। तो मैम क्या जैसे उनका फिल्म यदि बन गया तो वो पहले सेल हो जाता है ना, जैसे उनका पहले सेल हो जाता है, जो सिनेमा शो घर होते हैं उनका पहले वो खरीद लेते हैं, अच्छा, उस हिसाब से वो अपना अब टिकट मैं के नाम आपको में बताती खरीदते हैं, हूँ उस हिसाब जो से टिकट बेसिकली, खरीदते हैं, तो फिर उनको हाँ कैसे ठीक फायदा है, होता है?
बेसिकली प्रोसेस क्या होता है, मैम जब भी आप, एक मिनट मैं बोलूं, कोई भी प्लीज अपना ऑडियो भी म्यूट कर दो, मैं जब सवाल का आंसर दे दूं उसके बाद किसी को कुछ बोलना हो तो बोलना, ठीक है। होता क्या है, जब आप किसी भी मार्केट में जाते हो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो सबसे पहले क्या करते हो, आप देखते हो कि आपके प्रोडक्ट को खरीदने वाला कौन है, सबसे पहले यही होता है ना। आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को कह सकते हो कि एक तरह से जी। पिच करते हो कि ये मेरा प्रोडक्ट है जो मैंने बनाया है, क्या आप इसे खरीदना पसंद करेंगे। इसी तरह से फिल्म डायरेक्टर्स जो होते हैं, जब मूवी बनाने लगते हैं सबसे पहले वो प्रोड्यूसर्स की तलाश करते हैं। अगर उनके पास प्रोड्यूसर नहीं होगा, फाइनेंस नहीं होगी, तो वो मूवी नहीं क्रिएट कर पाएंगे, उसे नहीं बना पाएंगे। जब उनके पास एक प्रोड्यूसर आता है जो कि पूरी फिल्म को बनाने में जितनी भी कॉस्ट का इस्तेमाल होगा वो कह सकते हैं कि लेने को तैयार हो जाता है, उसके बाद वो फिल्म को तैयार करते हैं। जब फिल्म पूरी तैयार हो जाती है तो फिल्म डायरेक्टर का उसमें पैसा नहीं लगा है, उसमें फिल्म प्रोड्यूसर्स का पैसा लगा है। फिल्म डायरेक्टर का क्या लगा है, सिर्फ उसने डायरेक्शन का काम किया है, फिल्म प्रोड्यूसर ने पैसा लगाया है। जब फिल्म थिएटर्स में जाती है तो जो भी पैसा आता है वो फिल्म डायरेक्टर को बाद में जाता है, मतलब कि जो एक होता है ना शेयरिंग बाद में जाती है, लेकिन पहले फिल्म प्रोड्यूसर्स के पास पैसा जाता है। अब होता क्या है, जब आप फिल्म समझ लो, मैं यश राज का बैनर हूँ, ठीक है, या फिर धर्मा प्रोडक्शन मेरा बैनर है, मैंने एक मूवी बनाई। अब मैं सबसे पहले ये देखूंगी मार्केट में कि कौन कौन सा बड़ा ब्रांड है जो कि मेरी फिल्म को खरीदना चाहेगा। मैंने धर्मा प्रोडक्शन में फिल्म बनाई, अब क्या सोनी मेरे को खरीदना चाहेगा, मेरी फिल्म को खरीदना चाहेगा, क्या जी मेरी मूवी को खरीदना चाहेगा, या फिर जो इरोस है क्या वो मेरी मूवी को खरीदना चाहेगा, क्या वो मेरी मूवी को खरीद के थिएटर में लगाना चाहेगा। इस तरह से ये आगे प्रोसेस होता है। फिर वो सबसे पहले मार्केट में बड़े-बड़े ब्रांड्स को पिच करते हैं, जो फिल्म प्रोड्यूसर्स होते हैं थिएटर में जाने के लिए। जैसे सलमान की अगर मूवी आती है तो वो सबसे पहले क्या होता है, उसकी स्क्रीनिंग पहले ही हो जाती है, सब थिएटर्स में पहले ही बिक जाता है। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है कि अगर सलमान खान इस मूवी में है तो श्योर शॉट है कि इस मूवी की जो रेवेन्यू होगा वो करोड़्स में जाएगा। तो वो बड़े-बड़े ग्रुप्स जो होते हैं, इरोस हो गया या फिर जी हो गया, या बड़े जितने भी ग्रुप्स हैं, वो थिएटर में मैम यदि सेल ऐसे करने यदि से पहले ही एंड होने वाला है मैम, थोड़ा सा मैम यदि रैप अप करें। मैम यदि ऐसा है तो मैम, यदि हमारी जो कोई सिनेमा है यदि वो खरीद लेती है, जो भी प्रॉफिट होता है या घाटा होता है तो उसको सिनेमा की क्या नाम जिम्मेदारी है, फिर तो सिनेमा प्रोड्यूसर क्या नहीं, नाम वो कुछ मूवी नहीं मूवी मूवी हाँ तो मैम सिनेमा जैसे कि और मान लीजिए मूवी में कि बहुत अंतर होता है। तो वही मैं पूछ मैम रहा हूँ मैम, वीनस वो भी एक मैम खरीदता क्या मैम है, किसी को मान लीजिए कोई भी सिनेमा हॉल है वो खरीद लिया किसी भी मूवी को, चाहे प्रॉफिट हो या घाटा हो, वो तो उसकी जिम्मेदारी हुई। यदि प्रॉफिट होता हाँ। है तो वो प्रोड्यूसर को कैसे जाएगा, वो कैसे जाएगा सर, क्योंकि मैम तो मैंने खरीद लिया, उसकी जो लीगल जो नहीं तो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो नुकसान, मैंने सब कुछ अगर ले लिया। फिल्म का नुकसान, शुभम सुनो ना, अगर फिल्म में नुकसान हो रहा है तो प्रोड्यूसर को भी नुकसान होगा, ऐसा नहीं है कि उसे पैसा जाएगा पूरा। अगर फिल्म नहीं बिक रही है, अगर फिल्म नहीं चल रही है तो प्रोड्यूसर को नुकसान होता है। ऐसा नहीं होता है कि उसको पूरा पैसा जो कंपनी है वो पहले पे कर चुकी होती है। कुछ परसेंटेज पहले दे दिया जाता है, लेकिन कुछ परसेंटेज अपने पास रखा जाता है, जो कि कहा जाता है कि जब फिल्म थिएटर्स में जाएगी, फिल्म जितनी अर्निंग करेगी उसके बाद आपको इतना परसेंट दिया जाएगा। अगर फिल्म अर्न करती है तो वो परसेंटेज प्रोड्यूसर्स को जाता है, अगर नहीं फिल्म अच्छा अर्न करती तो वो फिल्म का पैसा जो है प्रोड्यूसर्स को नहीं जाता। तो बेसिकली फिल्म बनाने के बीच अगर सबसे ज्यादा घाटा अगर किसी को होता है तो प्रोड्यूसर्स ही होते हैं, क्योंकि उनका पैसा ही लगता है फिल्म्स में। कई फिल्म्स आती हैं जो लोग देखते नहीं है, ऐसी चली जाती हैं। ये अपना ऑडियो प्लीज अपना रैप ये कर लो, अनम्यूट कर लो। मेरे ख्याल से 11:30 होने वाला है, तो अभी हमारे पास 10 मिनट बचे हैं, तो अभी मैं आगे का प्रोसीड करूं। 35-36 तक एंड हो जाएगा मैम, प्लीज जल्दी कर दीजिए थोड़ा। हाँ, इसीलिए मैं 3 कह रही मिनट हूँ बचे कि हैं। मैं अभी आगे का कवर करती हाँ हूँ। अच्छा ठीक है। अब बेसिकली फर्स्ट इंडियन फिल्म जो थी वो फ्लैश, अभी अनम्यूट कर दीजिए ऑडियो प्लीज, म्यूट कर दीजिए सॉरी। फर्स्ट इंडियन फिल्म जो है फ्लैशबैक के साथ जो बनी थी इंडियन सिनेमा में, वो कौन सी थी, किसी को मालूम है क्या? नहीं मालूम, आई एम श्योर। फ्लैशबैक के साथ जो फर्स्ट इंडियन मूवी बनी थी वो थी रूपलेखा, ठीक है। फ्लैशबैक का मतलब क्या होता है, कोई जानता है? मैम जो पीछे से फ्लैश। जी नहीं, गलत। मैम फ्लैशबैक का मतलब मूवीज होता है है ना, पुरानी, भूतकाल फ्लैशबैक का मूवीज में मतलब होता है लाइक जो आप पुरानी मैम यादों अतीत को में जब आप जाके एक पुरानी तरह यादों को याद, हाँ अतीत में मैं जाके, जो अतीत अतीत में में जाके जाके की आदमी जो जाती है।
इमेजिन करता है उससे मैम फ्लैशबैक उसको आ जाता भूतकाल ही तो बोलते हैं। हाँ है। अतीत अतीत तो बेसिकली जो भूतकाल पुरानी मूवीज होती है, अलग हो गया। अच्छा गाइस, जो पास पुरानी अतीत में मूवीज जाते होती है, जब अच्छा सुन लो प्लीज, अपना ऑडियो म्यूट कर दो। सब एक साथ बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो जो हम पुरानी इतने दिन मूवीज जो बाद सब पहले, मिले ना, इसलिए मैम बात करने का मन कर रहा है सब। चुप हो जाइए। कोई इशू नहीं है, चलो ऑडियो म्यूट करो, नेक्स्ट आयुष क्लास प्लीज में शांत बात हो जाइए। तो जो फर्स्ट मूवी थी वो थी रूपलेखा, ठीक है। रूपलेखा फर्स्ट मूवी थी जो फ्लैशबैक में बनी थी, यानी कि जिसमें पुरानी जो आपका कह सकते हो कि जो पुरानी यादों को एक तरह से पोर्ट्रे किया गया था उसमें। अभी भी किसी का ऑडियो जो है वो म्यूट नहीं है, बहुत आवाज आ रही है। धीर ऑडियो म्यूट करो धीर भाई। गरिमा का है, गरिमा का, गरिमा। अच्छा गाइस, मैं अभी एक असाइनमेंट दे रही हूँ, आप लिखो उसको, और मेरे को नेक्स्ट क्लास में वो कंप्लीट चाहिए। जितना आज पढ़ाया एटलीस्ट उस पे एक सवाल तो बनता ही है। बोलू? बोलिए मैम। रेज हैंड, Yes, रेज ma'am. हैंड। अगर ऑडियो म्यूट है तो हैंड रेज करके बोल दो कि मैं सुन रहा हूँ, मुझे आधा पता चल जाएगा। सुरभि म्यूट कर दो, आवाज आ रही है तुम्हारी बार बार। मैम जल्दी बोलो, नहीं तो फिर वीडियो एंड हो जाएगा थोड़ी देर में। सुरभि हाँ, म्यूट कर दो, so- तुम्हारी आवाज आ रही बार बार। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिनेमा यस आगे मैम। इंडियन ओल्ड सिनेमा एंड द न्यू सिनेमा? बेसिकली जो पुराना सिनेमा था और जो नया सिनेमा है उसमें क्या डिफरेंस आया है, दैट इज द क्वेश्चन। ओके। आप लोगों को वैसे असाइनमेंट जो मिलते हैं आप कैसे मेल के थ्रू देते हो, किस तरह से देते हो? बिकॉज दिस इज द फर्स्ट मिले ही नहीं अभी तक मैम। पूछ रही हूँ। पहला असाइनमेंट है वन मैम। बाय वन प्लीज। हम असाइनमेंट्स नहीं मिले अभी तक। पहला असाइनमेंट है। तो अच्छा, तो सवाल समझ आ गया कि अभी ओल्ड फिल्म जो होती थी और जो नई फिल्म इंडस्ट्री जो बनी है उसमें क्या डिफरेंस आया यू है। अंडरस्टैंड। निकिता, Yes, ma'am. निकिता आपको समझ आ गया? निकिता? हेलो। या यस मैम, आ गया आ गया आ गया। आ गया समझ। अच्छा, आज की क्लास में कोई कंफ्यूजन अभी तक? इंडियन सिनेमा भी पूरा हुआ नहीं है, वैसे बहुत कुछ है क्योंकि ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। किसी को कोई कंफ्यूजन है?